First, listen the question once again. I am asking that please tell me about Project Shakti, and second, Khushiyon Ki Doli. Yes, Piyush. Ma'am, Khushiyon Ki Doli, ma'am, started in 2010 in March. Initiative multinational cooperative Hindustan Union Labour. Ma'am, and market strategy or consumer engage and 25 rural consumers camping to stand. 25 rural consumers were there. 25 million consumers. They basically covered around 25 million consumers. Stand West Bihar started to 2011. In Bihar and around 3 states in 2010. This project was started in 3 states, and after 1 year in 2011, 2 more states were included in this campaign, right? So, who is going to elaborate it next? Abhijit. It was launched by the HUL 2010, and it was starting in the Maharashtra, Andhra Pradesh, and UP, Uttar Pradesh, and it was a campaign or to the giving information of a product from the HUL about how to use and how to sell the product to the rural village, to the retailer shop, and it was at 2011 he was going Bihar and West Bengal for the campaign, stand-up campaign, and 25 million people are included in the campaign, consumer use campaign. And first stage is get to go to aware the consumer. Second stage is to giving the Abhijit, your Ma'am, Khushiyon Ki Doli is started by the HUL in 2010 in Maharashtra, UP, and Andhra Pradesh. The main aim of the campaign is to reach the backward village where the media can't able to reach there. The message of HUL is to change the brand image and to give the awareness about to the people that how to use the brand in their life. Very good. It also include the cleanliness. It also include the cleanliness and hygiene initiatives for taking for connecting to the people, rural people. HUL take this step first, the awareness step, in which 4 to 5 people. In which the group of 4 to 5 people is made and sent to the different area to gather the people to reach in the campaign, which is known as the mohallas. And this event was conducted in the local language, which helped the rural people to understand it easily. And second step is the consumer engagement, in which promoters go to door to attract the consumer and give the trial about the product. Third one is the retailer, in which the team go visit the retailer shop to tell him to show their visibility of the brand and availability of the brand. HUL reach around 25 million consumer. Rural consumer. And, yes, very good. And in 2011, it also started in West Bengal and Bihar. Very good. Okay, so I guess Khushiyon Ki Doli सबको clear हो गया होगा. And who is going to tell me about Project Shakti? Was started by the HUL in 2001,
The main aim of the project is to empower the women in the rural area by creating their livelihood. And those women are known as, those women are known as Shakti Amma. Very And good. in this project, one member of the Shakti Amba's family, man is also included in this, and they are known as the Shakti Man. And ma'am, that's all I remember about that. Project Shakti is started by Hindustan Unilever, and the main aim of Project Shakti is to empower women in the rural areas, right? Empower करना main aim था. इसके लिए they are giving a kind of a small training program to women that how they can sell the products in the rural market. कैसे प्रोडक्ट्स को लोकल एरियाज में जो वुमेन थी उनको ही उन्होंने क्या किया, बेसिकली एज अ मेंबर बनाया, एंड वुमेन का उन्होंने नाम क्या दिया, शक्ति अम्मा, एंड दे आर इनकरेज टू डू द बिजनेस. एंड उससे क्या हुआ, द लाइफस्टाइल और स्टैंडर्ड जो था रूरल एरियाज में लोगों का, वो काफी हद तक चेंज हुआ. जो एक स्टीरियोटाइप सिचुएशन और एक जो एटमोस्फेयर होता है रूरल एरियाज में अबाउट वुमेन, दैट दे आर ओनली मेड फॉर वन थिंग, दैट इज हाउस होल्ड चोर्स एंड ऑल, शी ओनली नीड टू डू दिस थिंग. तो ये एक तरीके का स्टीरियोटाइप को ब्रेक करते हुए वुमेन ने अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए इस पर्टिकुलर कैंपेन, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को क्या किया, ज्वाइन किया, एंड इससे बहुत सारे रूरल एरियाज में वुमेन को जॉब मिला. बाद में कुछ एरियाज और ज्यादा कवर करने के लिए उनको शक्ति अम्मा की फैमिली में से किसी भी एक पर्सन को, मतलब किसी भी एक मेन को अलाउ किया गया कि आप उनकी हेल्प कर सकते हैं. उनको साइकिल दिया गया कि आप दूसरी जगह रिच करने के लिए, प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आप जा सकते हैं दूसरी तरफ. तो इसके लिए दे गेट द साइकिल और एक असिस्टेंस की तरह आपको काम करना है. ठीक है, तो ये एक प्रोजेक्ट था. ये जो दोनों प्रोजेक्ट था एक्चुअली में दीज बोथ आर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी. ये दोनों मार्केटिंग स्ट्रैटेजी था, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी विद द सोशल इंटरेस्ट, राइट. तो आई गेस दोनों क्लियर हो गया होगा. नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड द टॉपिक whatever we were doing, that is marketing mix in rural market, and I guess product and pricing both are completed. बट वंस अगेन मैं उसको एक बार फिर से आज कंप्लीट करवा दूंगी. ठीक है, और फिर लास्ट में थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर सेशन होगा. लेट्स स्टार्ट विद दैट. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेस मिक्स? प्लेस मिक्स का मतलब होता क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेस? बेसिकली यहाँ पर हम किसके बारे में बात करेंगे, दैट हाउ वी आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू द कंज्यूमर, हाउ विल रीच टू द कंज्यूमर. जैसे प्रोडक्ट कैसे बनाना है, प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, ब्रांडिंग कैसे करेंगे, लेबलिंग, पैकेजिंग, ये सारे डिसीजन से रिलेटेड होते हैं. प्राइसिंग कि उस प्रोडक्ट का क्या वैल्यू है और उसके लिए हमें कितना प्राइस सेट करना है, दीज आर रिलेटेड विद द प्राइसिंग स्ट्रैटेजी. बट द थर्ड वन, द प्लेस इज रिलेटेड विद द कन्वीनियंस, अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर. कंज्यूमर तक प्रोडक्ट को हम कैसे पहुंचाएं, प्रोडक्ट को हम कैसे मैनेज करें, इन्वेंट्री और स्टॉक को कैसे मैनेज करें, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे करना है, कौन से रूट से प्रोडक्ट को पहुंचाना है. तो दीज ऑल आर कम्स अंडर द प्लेस डिसीजन. इसको हम कहते हैं प्लेस डिसीजन. और या तो इसमें हम कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज करेंगे, कौन सी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज यूज करेंगे, और रूरल मार्केटिंग पढ़ रहे हैं तो कौन सा स्ट्रैटेजी रूरल मार्केट के लिए बेटर होगा, और कौन कौन सी प्रॉब्लम है आज भी रूरल मार्केट में जिसकी वजह से प्रॉपर प्लेस डिसीजन लेने में किसी भी मार्केटर को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है. व्हाट आर दोस प्रॉब्लम्स, हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे. ठीक है, प्लेस डिसीजन में सबसे पहले ये जानिए कि बेसिकली प्लेस होता क्या है. तो यहाँ लिख सकते हैं, प्लेस रेफर्स टू डिस्ट्रीब्यूशन, प्लेस रेफर्स टू डिस्ट्रीब्यूशन of the product, place refers to distribution of the product and include distribution channel and include distribution channel. एरिया कवरेज यानी कितने एरिया को हमें कवर करना है. ठीक है, तो खैर हम रूरल मार्केटिंग की बात करें तो वी आर बेसिकली कंसर्न टुवर्ड द रूरल मार्केट ओनली, राइट. So place refers to the distribution of the product and includes distribution channel
एरिया कवरेज, एरिया कवरेज, एरिया कवरेज, चैनल, एरिया कवरेज, फिर वेयर हाउसिंग, एरिया कवरेज, वेयर हाउसिंग। सबको पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेयर हाउस? वेयर हाउस क्या होता है? सबको पता है क्या होता है वेयर हाउस? Where we store Where the goods were stored. It is a tough space which is made especially by the marketers, and the governments are also making the warehouses for stocking the grains and other products. ठीक है, तो warehouses is basically used for stocking the product, right? So warehousing, inventories तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, अकाउंटेंसी में काफी बार आया होगा इन्वेंट्रीज का टर्म। तो इन्वेंट्रीज इज योर स्टॉक, आप लोगों ने वो भी पढ़ा, सेमी प्रोसेस्ड स्टॉक है ना, रॉ मटेरियल, सेमी प्रोसेस, ये सब पढ़ा होगा है ना। चलिए, तो इन्वेंट्रीज एंड ट्रांसपोर्टेशन, so place refers to the distribution of the product in the distribution channel, area coverage, channel remuneration रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लिखिए वेयर हाउसिंग, इन्वेंट्रीज एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो बेसिकली प्रोडक्ट को हमें कहाँ से कहाँ तक पहुंचाना होता है? तो प्रोडक्ट को हमें एक मैन्युफैक्चरर से रिटेल कंज्यूमर तक पहुंचाना होगा। यानी कि अगर मैं आप लोगों को व्हाइट बोर्ड में से एक बार इलाबोरेट करूं, तो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि जो मैन्युफैक्चरर है उससे हम कहां तक प्रोडक्ट को पहुंचाना है, फाइनली एंड यूजर यानी कंज्यूमर तक प्रोडक्ट को पहुंचाना है। इज इट दैट वेरी इजी? क्या लगता है कि मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुंचाना क्या बहुत इजी है? एग्जैक्टली नो, because it is a complex task, because we have to cover so many people, we have to cover so many markets and all. तो मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुंचाना इजी नहीं है इन द केस जब कंपनी जो है वो लार्ज स्केल में प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रही है या प्रोडक्शन कर रही है। ये टोटली सिचुएशनल कंडीशन होता है कि बेसिकली जो प्रोडक्ट है वो किस टाइप का है और हम कंज्यूमर को कैसे पहुंचा सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ इसमें बताऊंगी चैनल्स क्या क्या होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के। तो जैसे मार्केट मैन्युफैक्चरर जो है वो कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए कई बार कुछ मीडिएटर्स का यूज करता है। मीडिएटर्स कौन होते हैं? मिडलमैन होते हैं, एजेंट्स होते हैं। अब ये इसमें कौन कौन किसको किसको यूज किया जा सकता है? देखिए, तो यहाँ पर कुछ लेवल ऑफ चैनल्स है। वन लेवल, सबसे पहले होता है जीरो लेवल चैनल। जीरो लेवल चैनल मतलब कि जहां पर मैन्युफैक्चरर कंज्यूमर को प्रोडक्ट डायरेक्ट पहुंचाता है विदाउट यूजिंग एनी मीडिएटर। ठीक है, बिना कोई मीडिएटर को यूज किए हुए जब मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट कंज्यूमर को डायरेक्टली पहुंचाता है तो ऐसे केस को हम कहते हैं जीरो लेवल चैनल। जीरो लेवल क्यों है? बिकॉज यहाँ एक भी मीडिएटर और मिडलमैन प्रेजेंट नहीं है। जब हम वन लेवल चैनल की बात करते हैं, खैर वन लेवल चैनल में पहुंचने से पहले मैं आपको कुछ बेनिफिट बता दूं और कुछ कंपनीज का बता दूं। जैसे अमेजन जो ऑनलाइन आप जिससे शॉपिंग करते हैं, ई कॉमर्स की जो प्लेटफॉर्म है आपकी, अमेजन बेसिक्स नाम से उन्होंने अपना को एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट किया है। ठीक है, वो अपने प्रोडक्ट को डायरेक्टली सेल करते हैं कंज्यूमर तक बाय यूजिंग द इलेक्ट्रॉनिक मीडियम। और वी कैन से कि आजकल ऑनलाइन जो बेसिकली प्रोडक्ट जो सेल किए जा रहे हैं काफी हद तक वो डायरेक्ट बेसिकली चैनल है या फिर कह सकते हैं जीरो चैनल है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली कंज्यूमर तक पहुंचा रहा है। इससे कंज्यूमर को कुछ बेनिफिट्स तो होते होंगे, ऑब्वियसली होते हैं। कंज्यूमर को लो कॉस्ट में प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाता है, बिकॉज अगर मीडिएटर जितना ज्यादा इन्वॉल्व होगा आपको उतना ज्यादा कमीशन देना पड़ता है, राइट। और एक आपका ऑनलाइन चैनल है तो इसकी वजह से हर एक कंज्यूमर से इंटरेक्शन की जरूरत भी नहीं पड़ती है मैन्युफैक्चरर को, तो यहाँ पर टाइम भी सेव होता है, कॉस्ट भी सेव होता है। तो एक तरीके से कहा जाए तो आजकल डायरेक्ट चैनल जो है ज्यादातर वो ऑनलाइन और ई कॉमर्स ज्यादातर को यूज कर रही है। अब हम वन लेवल चैनल पे आते हैं। जब हम वन लेवल चैनल की बात करेंगे तो वन लेवल चैनल वैसे चैनल्स होते हैं बेसिकली जहां पर एक मीडिएटर प्रेजेंट होता है। और वो मीडिएटर कौन होता है? देखो, यहाँ मैन्युफैक्चरर है, यहाँ कंज्यूमर है। अब कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए जो प्रोडक्ट है पहले रिटेलर को सेल किया जाएगा। तो यहाँ पर जो एक मीडिएटर है वो कौन है? रिटेलर। तो रिटेलर जो है वो बेसिकली क्या है? वो एक वन लेवल चैनल, एक मीडिएटर है जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक पहुंचाने का काम कर रहा है। बेसिकली इट इज अ बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड कंज्यूमर, तो इसको कहते हैं वन लेवल चैनल।
अब यहाँ पर जो रिटेलर है वो कौन रिटेलर्स हो सकते हैं? आपने देखा होगा कुछ कम, जैसे आपके बिग बाजार हो गए, कुछ सुपर मार्केट्स हैं, ये इतने बड़े बड़े रिटेलर्स होते हैं जो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट क्या करते हैं, सप्लाई करवा लेते हैं अपने बेसिकली स्टोर तक, और फिर वो कंज्यूमर को प्रोडक्ट सेल करते हैं। अच्छा, पॉसिबल क्यों नहीं है किसी भी मैन्युफैक्चर के लिए बेसिकली डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुंचना? क्योंकि जैसे कुछ गुड्स होते हैं, जैसे एफएमसीजी गुड्स वगैरह होते हैं, जैसे सॉल्ट हो गया आपका, फिर आपके नीड बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं जो डेली यूज वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, ब्रेड हो गया, मिल्क हो गया। आप सोच के लिए, जब हमें ब्रेड लेना होता है तो हम अपने आसपास के किसी रिटेल शॉप पे जाते हैं, ना कि हम चले जाते हैं मैन्युफैक्चरर के पास। इज इट पॉसिबल टू गो टुवर्ड मैन्युफैक्चरर एंड आस्क हिम टू गिव द ब्रेड? And is it possible for manufacturer to deal with the crores of, or not crores even, but lakhs of consumers at a single time? Is it possible? तो मैन्युफैक्चरर जब कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो बेसिकली एफएमसीजी गुड्स और डेली बेस्ड गुड्स होते हैं, तो उसके लिए मीडिएटर की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, ठीक है? तो ऐसे केस में रिटेलर्स जो है उनकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो इसको हम कहेंगे वन लेवल चैनल, जहां पर रिटेलर जो है वो प्रोडक्ट डायरेक्टली कहाँ से खरीद रहा है, मैन्युफैक्चरर से खरीद रहा है, और वो फिर कंज्यूमर को सेल कर रहा है। जैसे बिग बाजार आपका हो गया, ठीक है, तो जियो मार्ट वगैरह, जियो मार्ट तो खैर ऑनलाइन भी आ गया, बिग बाजार आपका होगा, विशाल मेगा मार्ट हो गया, ये सारे ऐसे बड़े रिटेलर्स होते हैं जो प्रोडक्ट को कहाँ से उठाते हैं, जी मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट बेसिकली परचेज कर लेते हैं। तो ये होते हैं वन लेवल चैनल। वन लेवल चैनल में कौन है मीडिएटर? वन लेवल चैनल में मीडिएटर कौन है? रिटेलर। रिटेलर। अब आते हैं हम टू लेवल चैनल। जब हम टू लेवल चैनल की बात करेंगे तो यहाँ पर कौन होंगे? मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर जो प्रोडक्ट है वो किसको देगा? होलसेलर को। होलसेलर किसको देगा? रिटेलर को। एंड रिटेलर किसको देगा? कंज्यूमर को। तो यहाँ पर जो आप देख रहे होंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज मोर एंड मोर मीडिएटर्स आर इंक्लूडिंग इन दैट, राइट? अब यहाँ पर होलसेलर है, फिर रिटेलर है, फिर कंज्यूमर है। अब यहाँ पर जो रिटेलर्स हो सकते हैं वो तो स्मॉल रिटेलर्स भी हो सकते हैं एंड लार्ज रिटेलर्स भी हो सकते हैं। अब होलसेलर का काम क्या है? होलसेलर बेसिकली मैन्युफैक्चरर से ना बल्क में प्रोडक्ट खरीद लेता है। क्या करता है? बल्क में प्रोडक्ट खरीद लेता है। बल्क का मतलब होता है थोक में। और जैसे अगर मैं बोलूं कि मैं एक रिटेलर हूं और मुझे एक पैकेट बिस्किट की रिक्वायरमेंट है, तो मैन्युफैक्चरर और होलसेलर मुझे देगा ही। आई हैव ओनली वन ऑप्शन, दैट इज रिटेलर। तो बेसिकली जो थोक होता है ना, उसको डिवाइड करते 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 जाके कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुंचता है। तो होलसेलर क्या करता है? मैन्युफैक्चरर से थोक में प्रोडक्ट खरीद लेता है और फिर उसको स्टॉक कर लेता है अपने पास, और उसके बाद रिटेलर जो है मैन्युफैक्चरर के पास ना जाकर होलसेलर के पास जाता है एंड प्रोडक्ट को लेता है एंड खरीदता है। मतलब रिटेलर जो है वो होलसेलर से प्रोडक्ट खरीदता है एंड फिर वो कंज्यूमर को सेल करता है। तो यहाँ पर दो मीडिएटर हो गए। एक होता है थर्ड लेवल। थर्ड लेवल में यहाँ पर आपका मैन्युफैक्चरर होगा, फिर यहाँ पर आपके एजेंट्स हो जाएंगे, एजेंट, फिर आपका आएगा होलसेलर, फिर आपका आएगा रिटेलर एंड फिर आपका आएगा कंज्यूमर। यानी कि यहाँ पर एक और कौन मीडिएटर एड ऑन हो गया, दैट इज एजेंट, ठीक है? अब मैन्युफैक्चरर क्या, ये एजेंट का काम क्या होगा कि ये मैन्युफैक्चरर और होलसेलर को क्या करेगा? कनेक्ट करने का काम करेगा। यानी कि ये खरीदेगा नहीं, ये कनेक्ट करवाएगा, यानी परचेज एंड सेलिंग का प्रोसेस करवाने में एजेंट हेल्प करेगा एंड फिर होलसेलर के पास प्रोडक्ट आ जाएगा, फिर रिटेलर को वही जो सेम चीज हुआ आपके टू लेवल में, सेम चीज वही प्रोसेस चलता चलेगा। तो इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। यानी कि प्रोडक्ट को आप किस तरीके से बांट रहे हैं, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ताकि वो प्रोडक्ट जो है वो सही जगह पे, सही प्लेस पे, प्रॉपर टाइम पे पहुंच सके। वो किसके पास पहुंचे? बेसिकली कंज्यूमर तक, मतलब रीच हो कंज्यूमर तक। और ये तभी पॉसिबल है जब प्रोडक्ट आपके सही टाइम पे अवेलेबल होगा और डिमांड को मैनेज करेगा। तो ये था आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। अब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के लिए आप किस तरीके से स्ट्रैटेजी यूज करते हैं? यानी कि आप इंटेंसिव स्ट्रैटेजी यूज करते हैं, सिलेक्टिव, या फिर आप एक्सक्लूसिव। अब ये तीनों क्या होता है मैं थोड़ा शॉर्टकट में बता देती हूँ। इंटेंसिव स्ट्रैटेजी जो होता है, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी होता है, इसका मतलब होता है कि जब प्रोडक्ट को है ना बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर को सेल किया जाए। जैसे कि मान लीजिए कि जो आपके आसपास लोकेलिटी में आपके रिटेलर्स हैं,
वहां तक सोचो कि कौन से प्रोडक्ट पहुंच रहे हैं, नीड बेस्ड प्रोडक्ट, जहां पर कंपनी का अप्रोच होता है मास मार्केटिंग का, मतलब हर एक एरिया में मेरा प्रोडक्ट पहुंच जाना चाहिए। इंटेंसिव इज समथिंग दैट इज मास मार्केटिंग, यानी कि पूरे के पूरे एरिया में हम प्रोडक्ट को पहुंचा सके। एफएमसीजी प्रोडक्ट्स होते हैं एचयूएल, आईटीसी, पीएनजी, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, ये जो 2-3 कंपनीज है एफएमसीजी गुड्स की, ये बेसिकली ये स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करती है, जहां आपके हर लोकेलिटी से लेके हर जगह पे इजिली यू आर एबल टू गेट द प्रोडक्ट। नेक्स्ट आता है आपका सिलेक्टिव। सिलेक्टिव वैसी बेसिकली स्ट्रैटेजी जहां पर कुछ ब्रांड्स है, जैसे आपका बाटा हो गया, यूसीबी हो गया, यूएस पोलो हो गया, तो ये सारे जो होते हैं सिलेक्टिव अप्रोच को देखते हैं, और ये क्या करते हैं, एक ब्रांडेड शॉप जो है वो कुछ सिलेक्टेड एरियाज में ओपन करते हैं, और इसी शॉप पे, इसी एक्सक्लूसिव स्टोर पे यू आर एबल टू गेट द ब्रांडेड प्रोडक्ट। लाइक बाटा का शूज लेना तो वी हैव टू विजिट द बाटा स्टोर, राइट? तो सेम चीज, सेम स्ट्रैटेजी सिलेक्टिव में है। इंटेंसिव इज समथिंग जहां पर हम मास मार्केटिंग करते हैं, आपको छोटे से बड़े शॉप कहीं पर भी गुड्डे बिस्किट मिल जाएगा, कहीं पर भी आपको बेसिकली फ्रूटी कोको कोला मिल जाएगा, है ना, आराम से। तो दैट इज बिकॉज ऑफ द इंटेंसिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। बट व्हेन वी आर परचेजिंग द गुड्स लाइक सच एज ब्रांडेड प्रोडक्ट, जैसे कि आपका बाटा हो गया, ब्रांडेड क्लोथ्स हो गए, फिर आपके ये हो गया, क्या बोलते हैं, जो चेन स्टोर्स हो गए, डोमिनोज, पिज्जा, ये सारे क्या है बेसिकली, ये कुछ सिलेक्टेड एरियाज में अपने ब्रांड का शॉप या स्टोर को ओपन करते हैं, फ्रेंचाइजी लेते हैं, ठीक है, कुछ इंडिविजुअल फ्रेंचाइजी लेके इसको ओपन करते हैं, बट ये बहुत सिलेक्टेड एरियाज में होते हैं। और इसमें एक चीज और भी है कि बाटा का जो शूज या फिर कुछ भी लेने के लिए आपको बाटा के स्टोर में जाना पड़ेगा, आपके पास कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। जैसे कि बिस्किट वगैरह खरीदना होता है तो एक स्टोर में नहीं मिला तो दूसरे स्टोर में चले जाते हैं और मिल भी जाता है। बट द थिंग लाइक इसमें जो इस तरीके की चीजें होती है, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं, उसमें सेम चीज है कि आप उसी स्टोर से आपको प्रोडक्ट मिलेगा, दूसरा कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है इंटेंसिव मार्केटिंग की तरह। नेक्स्ट है आपका एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव जहां पर एक्सेसिव लग्जरियस प्रोडक्ट जो होता है उसमें हम डील करते हैं। एक्सेसिव लग्जरियस प्रोडक्ट क्या हो गया, मतलब बेसिकली एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, लग्जरियस प्रोडक्ट है, वो कौन कौन से हो गए, जैसे कि आपके ऑडी हो गया। ऑडी का शोरूम देखा है, बहुत रेयर जगह पे अवेलेबल है, मतलब कि एक दो रीजन में या एक रीजन में एक या दो हार्डली डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपके अवेलेबल होंगे क्या स्टोर, मतलब बहुत ही कम। बहुत गुची इज वन ऑफ द एक्सपेंसिव ब्रांड ऑफ द क्लोथ्स एंड आपके एसेसरीज, उसका भी सेम सिचुएशन है, ठीक है। बर्बेरी इज अ ब्रांडेड शॉप, क्लोथ्स का शॉप है, बट बहुत ही कम एरियाज में अवेलेबल। आई गेस एक दिल्ली में मैंने देखा था, एंड मे भी हो सकता है कि ईस्ट में हो सकता है, कोलकाता में अवेलेबल हो, तो बहुत रीजनल वाइज ये अवेलेबल होते हैं स्टोर। तो दैट इज अ बेसिकली सेलेक्टिव इज बिटवीन इंटेंसिव एंड एक्सक्लूसिव। इंटेंसिव इज समथिंग वेरी लार्ज, बहुत ज्यादा इसमें डिस्ट्रीब्यूशन है। सेकेंड जो है आपका सिलेक्टिव, मोर लेस देन इंटेंसिव, इंटेंसिव से थोड़ा कम है, एंड एक्सक्लूसिव इज इवन लेस देन सिलेक्टिव। तो ये एक तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी है आपके। ये जो एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बता दिया, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, 0 लेवल, और आपका ये जो था ये था डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी, इंटेंसिव, 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 सेलेक्टिव, एंड द थर्ड वन इज एक्सक्लूसिव। किसी को कोई डाउट है? अगर कुछ याद करना है तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, जैसे अगर मैं ड्रॉ करूं बहुत तरीके, एक नॉर्मल तरीके से, तो इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि जैसे इंटेंसिव इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है, बहुत ज्यादा डॉट है, हर जगह पे डॉट है, मतलब इंटेंसिव जो है वो बहुत ज्यादा डॉट है, ठीक है, पूरा फुल है। एंड सिलेक्टिव इज समथिंग लाइक, सिलेक्टिव इज समथिंग, मतलब इस पूरे मार्केट में मान लो कि सिलेक्टिव इज समथिंग बहुत रेयर। ये डॉट जो है इसको आप मत मानना ये राउंड को, बस कुछ डॉट बना लो ऐसे, मतलब कुछ सिटीज में थोड़े बहुत शॉप्स और ब्रांड्स प्रेजेंट होंगे, हर एक एरिया में नहीं होगा। और एक आपका है एक्सक्लूसिव, लाइक इसको मान लो कि 4 ऐसे, बस 4 प्रेजेंट है। तो समथिंग लाइक दिस, ये थोड़ा सा सिचुएशन थोड़ा सा अजीब हो गया है, थोड़ा सा ड्राइंग, बट इसको ऐसे मानना कि लाइक एक बड़ा सा मार्केट है जिसमें काफी ज्यादा मार्केट में एक राउंड बनाना जिसमें बहुत लिमिटेड बनाना, और एक एक्सक्लूसिव में सिर्फ 5-6 डॉट्स बनाना। तो ये आपका एक तरीके से आप स्ट्रैटेजी समझने का है। समझ में आई बातें? ऐसा है कि इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है लार्ज या मास डिस्ट्रीब्यूशन, हर एक एरिया तक प्रोडक्ट पहुंचाने की कोशिश करेंगे।
ये ज्यादातर जो बड़ी कंपनीज एफएमसीजी की होती हैं जो ये इस तरीके के स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करती हैं, ठीक है। और इनका जो बेसिकली मेन मकसद क्या होता है, हर एक एरिया, हर एक लोकेलिटी तक प्रोडक्ट पहुंच जाना, ठीक है। बिकॉज फॉर परचेजिंग द नीड बेस्ड प्रोडक्ट वी कैन नॉट गो टू द मार्केट एरिया, बट वी कैन विजिट टू द स्टोर विच इज प्रेजेंट इन आवर लोकेलिटी, राइट। तो यही वाला सिचुएशन जो है ये आपके डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी था। एक्सक्लूसिव जो बहुत ही रेयर आपके स्टोर्स प्रेजेंट होते हैं रीजनल वाइज एंड ऑल, लग्जरियस प्रोडक्ट होते हैं, ये रोलेक्स मान लो, गुची मान लो, ऑडी के शोरूम्स मान लो, ठीक है। एंड वही अगर हम बात करें इसके बारे में सिलेक्टिव, तो दैट इज लाइक 1, 2 या 3 स्टोर हार्डली एक सिटी में प्रेजेंट मिल जाएगा आपको। जैसे पटना है तो पटना में यू विल गेट लाइक 2, 3 आपके मैक्स प्रेजेंट होंगे, यहाँ पर 2-3 पैंटालून्स है, राइट। तो लाइक बहुत सिलेक्टेड एरियाज में 1, 3, 4 स्टोर को ओपन करना, दैट इज सिलेक्टिव। एंड सिलेक्टिव क्यों, मतलब ऐसा क्यों है कि बस बहुत कम स्टोर्स होते हैं ब्रांड के, उसका 2-3 रीजन है। सबसे बड़ी बात कि अगर ब्रांडेड कपड़े अगर आपके आसपास एरियाज में मिलना शुरू हो जाएंगे ना, तो यू आर नॉट गोइंग टू गिव द प्रेफरेंस टू द ब्रांडेड क्लोथ। आपका जो एक इमेज जो होता है ब्रांड का वो बहुत जल्दी डिट्रॉइट होने लगेगा। अगर आप शॉपिंग करने जाते हैं एक पर्टिकुलर मॉल में, ये सब क्यों करने जाते हैं, बिकॉज ऑफ वी आर थिंकिंग दैट वी आर गोइंग टू परचेजिंग द ब्रांडेड प्रोडक्ट। तो वो जो एक इमेज है वो खराब ना हो जाए बेसिकली, प्रोडक्ट से रिलेटेड जो इमेज है, तो इसी वजह से बहुत सिलेक्टेड होते हैं। एंड एक्सक्लूसिव इसलिए इतने कम होते हैं बिकॉज उसका डिमांड एज सच नहीं है, लाइक इतना डिमांड ही नहीं है लग्जरियस प्रोडक्ट का। तो अगर हम बहुत सारे स्टोर्स ओपन कर लेंगे, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर हो जाएंगे, उनको मैनेज करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना। इसीलिए कुछ लिमिटेड हैं और कुछ ऐसे भी लिमिटेड स्टोर्स भी हैं, लिमिटेड कंज्यूमर्स भी हैं, इसीलिए इसी तरीके से रीजनल वाइज कुछ स्टोर्स मिल जाएंगे। बट नीड बेस्ड वाले प्रोडक्ट जो होते हैं वो इंटेंसिव है, क्योंकि वो हर एक पर्सन हो, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड का हो, चाहे कुछ भी हो, everyone basically use the or consume the need based products, right? तो इसीलिए इंटेंसिव स्ट्रैटेजी सुटेबल फॉर द एफएमसीजी गुड्स, ठीक है। तो नेक्स्ट ये तो मुझे लगता है कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा प्लेस क्या है, बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह से रिलेटेड चीजें, ठीक है। अब हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, रूरल एरियाज की तरफ हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं। कोई डाउट है किसी को, जो भी मैंने अभी आप लोग को एक्सप्लेन किया, एनीवन हैव एनी डाउट इन दिस, किसी को कोई डाउट है इसमें? नेक्स्ट है कि क्या क्या बेसिकली प्रॉब्लम्स हैं, ये तो मैंने आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दिया प्लेस से रिलेटेड चीजें, बट अब हम रूरल एरियाज पे बेसिकली फोकस करेंगे। तो रूरल बेसिकली कंज्यूमर तक पहुंचने में क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है किसी भी मार्केटर को, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो है यहाँ पर कि जो यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन चेन है, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की मैं बात करी थी, 1 लेवल 2 लेवल, यहाँ पर इतने बहुत सारे इंटरमीडियरीज को हायर करना पड़ता है जब हम रूरल कंज्यूमर तक प्रोडक्ट को पहुंचाते हैं। तो वी रिक्वायर सो मेनी इंटरमीडियरीज। तो कहीं ना कहीं ये कॉस्ट को बहुत ज्यादा इंक्रीज करता है। जितना ज्यादा आप इंटरमीडियरीज को बेसिकली हायर कीजिएगा उतना ज्यादा प्रोडक्ट का कॉस्ट इंक्रीज होगा, ठीक है। एंड कंज्यूमर रूरल एरियाज को होते हैं प्राइस सेंसिटिव, तो आप ओवरऑल प्रोडक्ट का प्राइस भी ज्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते। तो इस तरीके का पहला प्रॉब्लम जो मार्केटर को फेस करना पड़ता है, दैट इज बेसिकली the distribution chain requires a large number of intermediaries, यानी बहुत सारे mediators की जरूरत पड़ती है, and this is increase the cost of distribution, और ये cost of distribution को increase करती है। तो इसको फर्स्ट पॉइंट लीजिए कि जो मेजर ऑब्स्टिकल या फिर मेजर हिंड्रेंस जो है बेसिकली रूरल कस्टमर तक पहुंचने का मार्केटर के लिए, सबसे पहला है कि जितना रूरल कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए जो चेन और चैनल हम यूज करते हैं वो इंक्रीज होता जाता है। इंटरमीडियरीज हमें बहुत सारे चाहिए होते हैं, वहाँ के लोकल एरियाज को भी हम, लोकल पीपल को भी हम बेसिकली हायर करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और जितना आप रिमोट एरियाज में जाइएगा उतना ज्यादा आपको लोगों की जरूरत, मीडिएटर की जरूरत पड़ेगी। तो ये कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को इंक्रीज करता है। दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम। द सेकेंड क्या है कि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डीलर्स, यानी बहुत कम आपको डीलर्स जो है वो रूरल एरियाज में मिलेंगे। यानी डीलर्स जो होते हैं जो प्रोडक्ट को सेल करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं बेसिकली मार्केटर के साथ या कंपनी के साथ, बेसिकली कंपनी के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं कि वो प्रोडक्ट आपका सेल करेंगे। तो इस तरीके के जो डीलर्स होते हैं वो बहुत ही कम अवेलेबल है आपके रूरल मार्केट में, क्योंकि देखो जो ज्यादातर प्रोडक्ट जो है, कुछ ही प्रोडक्ट का मार्केट में क्या है, डोमिनेटिंग पोजीशन है रूरल एरियाज में। जैसे इलेक्ट्रॉनिक में तो आपको LG वगैरह देख लो, ठीक है। फिर आपके नॉर्मल FMCG वगैरह में आपके HUL और ITC के प्रोडक्ट हैं,
और बाकी जो और भी टाइप के प्रोडक्ट्स है उसका ज्यादा रोल नहीं है वहां पर। तो यहाँ पर डीलर्स जो है वो ज्यादा अवेलेबल ही नहीं है कहाँ पर, रूरल मार्केट में। तो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डीलर्स इन रूरल मार्केट, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डीलर्स इन रूरल मार्केट, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डीलर्स इन रूरल मार्केट, यानी कि अवेलेबिलिटी की बात करें यानी अवेलेबल ही नहीं है डीलर्स। नेक्स्ट इज poor viability of retail outlets due to low business volume. Poor viability of retail outlets due to low business volume. Poor viability of retail outlets due to low business volume. अगर मैं बात करूं बेसिकली रिटेल्स की, तो वहां पर जो ज्यादातर रिटेलर्स होते हैं वो ज्यादातर अनऑर्गेनाइज रिटेलर्स होते हैं। अनऑर्गेनाइज रिटेलर्स का मतलब वो होता है ज्यादातर आपको वेंडर्स मिलेंगे, हॉकर्स, पेडलर्स, यानी कि जो प्रोडक्ट को घूम घूम करके बेचते हैं, जैसे सब्जी वाले हमारे तरफ कैसे आते हैं वेंडर्स, ठीक है, तो उस तरीके के आपको ज्यादा मिलेंगे। ज्यादातर वहां पर हाट्स वगैरह या फिर वीकली मार्केट और फिर इस तरीके की चीजें होती हैं, मिलती हैं, परचेज करते हैं रूरल कंज्यूमर प्रोडक्ट इनसे। और वहां पर जो आपको शॉप से मिलेंगे ज्यादातर वो जनरल स्टोर टाइप के और किराना का शॉप मिलेगा, और बहुत ही प्रॉपरली मैनेज नहीं होगा वो प्रोडक्ट, मतलब स्पेस की कमी होगी, लुक प्रॉपर नहीं होगा शॉप का, कोई प्रॉपर प्रमोशन के लिए कोई बैनर्स नहीं लगे होंगे, बहुत ही मतलब बोल सकते हैं अनऑर्गेनाइज तरीके से वहां पर रिटेल आउटलेट प्रेजेंट होते हैं। तो दिस इज ऑल्सो मेजर ऑब्स्टिकल, एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है बेसिकली, क्योंकि वहां पर बिजनेस वॉल्यूम भी बहुत कम है, तो बहुत ज्यादा वहां पर ना प्रोडक्ट भी आपको नहीं मिलेगा। जैसे अगर अभी हम आसपास के भी अपने रिटेल आउटलेट जाते हैं अर्बन एरियाज में, तो वहां भी आपको 10 तरीके के बिस्किट की वैरायटी मिल जाएगी इजीली। बट अगर आप रूरल एरियाज में जाइएगा तो आपको बहुत कम ऑप्शंस मिलेंगे, मतलब वहां पर ऑप्शंस भी ज्यादा प्रेजेंट नहीं होते हैं, शॉप्स भी बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, अनऑर्गेनाइज वे में सारी चीजें रखी होती हैं। तो ये भी एक ऑब्स्टिकल है किसके लिए, कंपनी के लिए, ठीक है, टू रीच द रूरल कंज्यूमर। नेक्स्ट बात करें तो इनएडिक्वेट बैंकिंग फैसिलिटीज, जैसे अगर कोई मान लो कि कोई डीलर बनना चाहता है, कोई फ्रेंचाइजी लेना चाहता है, अपनी कंपनी वहां पर अपना रिटेल आउटलेट भी स्टार्ट करना चाहता है, एंड इफ ही और शी वांट टू टेक लोन फ्रॉम द बैंक, तो एक बैंकिंग फैसिलिटीज भी प्रॉपर नहीं है, ठीक है, तो जिसकी वजह से लोग वहां के इन्वॉल्व भी होना नहीं चाहते डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है, ये भी एक प्रॉब्लम है। उसके बाद फिर बहुत सारे ऐसे रिमोट एरियाज हैं जहां आज भी रोड जो है वो ऑल वेदर रोड्स नहीं है, यानी कि जो आपके वहां रोड, ऑल वेदर रोड सबको समझ आता है क्या होता है बेसिकली, जहां पर हमारे यहाँ पर होता है, ठीक है, पक्का रोड जिनको हम कहते हैं, तो ऑल वेदर रोड्स नहीं है। उसके बाद फिर नेचुरल कैलेमिटीज का बहुत ज्यादा इफेक्ट है आपके रूरल एरियाज में आज भी, जैसे फ्लड वगैरह आना, और बिहार में भी आपको पता होगा नॉर्थ बिहार में आए दिन फ्लड आता है, जैसे ही मानसून फ्लड आ जाता है। तो ये किसी भी कंपनी के लिए और किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के लिए उन एरियाज तक पहुंचना जो फ्लड प्रोन एरियाज हैं बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, राइट। तो ऐसे केस में जो इंटीरियर विलेजेस और जो बोल सकते हैं रिमोट एरियाज के विलेजेस हैं, वो फ्लड वगैरह के टाइम पे जो है उनका 70% जो मार्केट होता है वो ऑब्वियसली कनेक्टेड होता है रोड से कहीं पर भी, और वो पॉसिबल ही नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ द फ्लड, राइट। तो ये भी एक बहुत बड़ा मेजर बेसिकली बोल सकते हैं ऑब्स्टिकल है, ठीक है, कंपनी के लिए। एक और चीज है ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज का मतलब कमी होना, या लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज इन द पुअर इन विलेजेस, ठीक है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन जो है बहुत ही खराब है आज भी विलेजेस में, रोड की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, प्रॉपर डीलर्स आपको वहां नहीं मिलेंगे, अनऑर्गेनाइज रिटेलर्स और मार्केट्स है वहां पर। ज्यादातर आज भी रूरल कंज्यूमर जो है वो प्रोडक्ट जो है वो किससे खरीदना चाहते हैं, हॉकर्स, पेडलर्स वगैरह से, बिकॉज दे आर थिंकिंग दैट दे आर गोइंग टू गिव द प्रोडक्ट्स इन द लो कॉस्ट एंड द प्रॉपर प्रोडक्ट, राइट। तो दिस इज, और एक चीज और भी है कि वहां पर सोशल कनेक्शन बहुत ज्यादा होता है, जैसे रूरल एरियाज में कोई हॉकर पेडलर आएगा तो हमेशा आप उनसे रेगुलर परचेज करने वाला जो चीज होता है वो ज्यादातर होता है। तो ऐसे केस में किसी भी कंपनी के लिए कंज्यूमर तक पहुंच पाना रूरल एरियाज में मुश्किल होता है, ठीक है। ऐसे खैर अभी कुछ कंपनीज हैं उन्होंने कुछ इनोवेशन किया है रूरल एरियाज तक पहुंचने के लिए, और वो सब क्या क्या इनोवेशन है उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। किसी को कोई डाउट है जो मैंने अभी बताया, व्हाट आर द अबाउट द ऑब्स्टिकल्स इन द रूरल एरियाज? किसी को कोई डाउट है जो समझ नहीं आया हो? ठीक है,
नेक्स्ट है कुछ अभी चीजें हुई हैं, इनोवेशन हुआ है, जैसे अभी कुछ सैटेलाइट डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, मतलब जो कंपनी है उन्होंने कुछ स्टॉकिस्ट वगैरह को टाउन में बेसिकली अपॉइंट किया है, और ये स्टॉकिस्ट जो है वो क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबल होता है प्लेसिंग करने के लिए ऑर्डर। यानी कि कुछ स्टॉकिस्ट होते हैं जो प्रोडक्ट को स्टॉक में रखते हैं, स्टॉकिस्ट, और वो क्या करते हैं, ऑर्डर प्लेस करते हैं, ठीक है। और जैसी कंपनी जो है वो मतलब प्लेस करते हैं ऑर्डर, ठीक है, और यहाँ पर जो है वो क्या करेंगे, जितने भी स्टॉक्स मिलेंगे उसको प्रॉपरली क्लासिफाई करते हैं, ठीक है, उसको बड़े मतलब लॉट्स में उसको बेसिकली क्या करते हैं, एक एक एरियाज में उसको प्रॉपरली क्लासिफाई करते हैं, और जैसे ही रिटेलर्स को जरूरत पड़ती है जिस हिसाब से दे आर गिविंग द प्रोडक्ट टू देम, ठीक है। तो काइंड ऑफ एक होलसेलर का ही रोल कर रहे हैं ये। और जो स्टॉकिस्ट होता है वो 15 से 30 दिन में क्रेडिट हो जाता है, क्रेडिट बाय द कंपनी। अब ये क्या चीज है, इसको फिर से एक बार समझिएगा। ये जो सिस्टम है इसमें सैटेलाइट जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्टार्ट किया गया अभी हाल फिलहाल का ये इनोवेशन है। इस सिस्टम में क्या होता है, जो कंपनी है वो अपॉइंट करती है स्टॉकिस्ट इंपॉर्टेंट टाउन में, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट टाउन है बेसिकली आपके, जैसे टाउन क्या होते हैं, दैट इज सिटी से छोटे और डिस्ट्रिक्ट से थोड़े बड़े, तो टाउन्स जो है इंपॉर्टेंट टाउन्स में क्या करते हैं, कुछ स्टॉकिस्ट को हायर कर लिया उसने, ठीक है। और ये स्टॉकिस्ट किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये बेसिकली प्लेस करते हैं ऑर्डर, ठीक है, विद द कंपनी एंड रिसीव करते हैं स्टॉक। यानी कि कंपनी को ऑर्डर देते हैं, भाई मुझे इतना प्रोडक्ट चाहिए, एंड कंपनी उनको क्या करती है, प्रोडक्ट भेज देती है, ठीक है। रिसीविंग द स्टॉक, शॉर्टिंग द स्टॉक यानी शॉर्ट करना, यानी कि सजाना कहते हैं इन हिंदी, उसको प्रॉपरली अच्छे से सजा देते, शॉर्ट कर देते हैं स्टॉक को, छोटे से बड़े, बड़े से छोटे प्रोडक्ट, एक्सपेंसिव महंगे, इस हिसाब से शॉर्ट करते हैं प्रोडक्ट को, ठीक है। एंड फिर सप्लाई करते हैं गुड्स को, जो उनके पास स्टॉक में है उस गुड्स को सप्लाई करते हैं कहाँ पर, इन स्मॉल लॉट टू द रिटेलर। स्मॉल लॉट का मतलब छोटे छोटे, मतलब कम कम क्वांटिटी में वो रिटेलर तक प्रोडक्ट को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एंड जो भी मर्चेंट जो भी है वो रूरल एरियाज में सिचुएटेड है, उन सबको भी बेसिकली वो टाउन तक बेसिकली प्रोडक्ट को पहुंचाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्टॉकिस्ट है उसका काम क्या है कि टाउन के एरियाज में प्रोडक्ट को स्टॉक करना, ताकि रूरल एरियाज को इजिली कवर किया जा सके। तो यहाँ पर एक तो ये हो गया। नेक्स्ट है कि कुछ और भी चीजें हैं, जैसे हब एंड स्पोक्स मेथड भी है। हब एंड स्पोक्स मेथड में क्या होता है, इन रूरल एरियाज, जैसे कोको कोला है वो उसने डेवलप किया हब एंड स्पोक्स मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कोको कोला इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ दिस हब एंड स्पोक्स मेथड। इस मेथड में क्या होता है कि जो मैन्युफैक्चरर है वो इन द एरिया अपॉइंट्स द मेन डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब एक एरिया में वो एक मेन डिस्ट्रीब्यूटर को अपॉइंट कर लेता है, ठीक है। और उसके बाद दीज जो ये डिस्ट्रीब्यूटर्स इन टर्न क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं सब डिस्ट्रीब्यूटर को, ताकि वो स्मॉल मार्केट को हैंडल करे विद इन द टेरिटरी। एंड जो सब डिस्ट्रीब्यूटर है वो सप्लाई करते हैं रिटेलर्स, एंड दीज रिटेलर्स फाइनली डिलीवर टू द कंज्यूमर। अब इसको ध्यान से समझिएगा। हब एंड स्पोक्स मेथड में क्या है, यहाँ पर जो बेसिकली कंपनी के एग्जांपल लिया दैट इज कोको कोला, वो क्या किया, उसने मैन्युफैक्चरर ने क्या किया कि कुछ बेसिकली उन्होंने अपॉइंट कर लिया मेन डिस्ट्रीब्यूटर को, यानी कुछ हब बना दिया, जैसे ये हब 1 2 3 4 5, एक टेरिटरी में एक हब बना दिया, जैसे 5 हब बना दिया। मान लो कि एक ये टेरिटरी है, मान लो कि एक टेरिटरी है, क्या हो रहा है, ये क्या बन रहा है, ठीक है। पता नहीं क्या होगा, छोड़ो उससे, ठीक है। राउंड एक टेरिटरी मान लीजिए, उस राउंड में 1 2 3 4 5 ऐसे उन्होंने क्या बना लिया, हब बना लिया, ठीक है। अब उस हब में मेन जो बेसिकली जो आपके बोल सकते हैं मेन जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर है उनको अपॉइंट कर लिया, जैसे ये 5-6 डिस्ट्रीब्यूटर इस एक पर्टिकुलर एरिया में अपॉइंट कर लिया। अब वो जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो उन्होंने अपने सब डिस्ट्रीब्यूटर को बेसिकली अपॉइंट किया, यानी वो अगर मान लो एक हब है उसमें जो डिस्ट्रीब्यूटर, उन्होंने अपने डिस्ट्रीब्यूटर सब डिस्ट्रीब्यूटर को हायर किया। अब वो सब डिस्ट्रीब्यूटर का जो काम है वो क्या है, वो रीच करना कंज्यूमर तक।
कंज्यूमर तक रीच करना, नहीं कंज्यूमर को सेल नहीं, मतलब एक तरीके से रिटेलर तक, उस एरिया के रिटेलर तक बेसिकली प्रोडक्ट को पहुंचाना। इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मैन्युफैक्चरर ने एक टेरिटरी देखा, उसमें 5-6 हब को डिसाइड कर लिया, उस हब के लिए एक डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट किया। अब वो डिस्ट्रीब्यूटर ने अपने सब डिस्ट्रीब्यूटर को अपॉइंट किया, और वो सब डिस्ट्रीब्यूटर क्या कर रहा है, रिटेलर्स तक प्रोडक्ट पहुंचा रहा है, चाहे वो रूरल ही मार्केट क्यों ना हो। मतलब रूरल मार्केट हर एक एरिया, उस हब के हर एक एरिया तक सब डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो बेसिकली प्रोडक्ट को पहुंचा रहा है। और वो प्रोडक्ट कहाँ से आ रहा है, मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर को पहुंचा रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो सब डिस्ट्रीब्यूटर को पहुंचा रहा है, सब डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को पहुंचा रहा है, रिटेलर जो है वो कंज्यूमर को पहुंचा रहा है। इस तरीके से रूरल एरिया प्रोडक्ट क्या हो रहा है, सप्लाई हो रहा है। समझ में आया सबको? ये समझ में आया? हब एंड स्पोक्स मेथड समझ में आ गया? हब एंड स्पोक्स मेथड समझ में आया? ठीक है। तो यहाँ पर जो हब है और स्पोक्स मतलब क्या है, यहाँ की हब है और स्पोक। हब क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर को बोला जा रहा है, एंड जो स्पोक है वो सब डिस्ट्रीब्यूटर को बोला जा रहा है। तो हब एंड स्पोक मेथड्स के थ्रू भी रूरल मार्केट को बेसिकली कवर करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है। नेक्स्ट है एक सिंडिकेट डिस्ट्रीब्यूशन। सिंडिकेट डिस्ट्रीब्यूशन पहला फर्स्ट का क्या, सैटेलाइट डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड क्या था, हब एंड स्पोक डिस्ट्रीब्यूशन, एंड द थर्ड वन इज सिंडिकेट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सिंडिकेट डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, कंपनी सेलिंग नॉन कॉम्पिटिटिव गुड्स, यानी नॉन कॉम्पिटिटिव गुड्स का मतलब क्या होता है, जिसके ज्यादा कॉम्पिटिटर मार्केट में प्रेजेंट नहीं है वैसे गुड्स। ठीक है, तो कंपनी सेलिंग द नॉन कॉम्पिटिटिव गुड्स, ठीक है, कैन ज्वाइन टुगेदर, खुद सब मतलब जो नॉन कॉम्पिटिटिव गुड्स हैं, ज्वाइन टुगेदर एंड डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्ट थ्रू कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। जैसे एग्जांपल में पीजी हो गया, ठीक है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल कंपनी यूज करके। देखो क्या हुआ, जैसे कंपनी के बारे में बताती हूँ मैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर, पीएनजी, आईटीसी कॉम्पिटिटर रहेंगे काइंड ऑफ, क्योंकि सारे एफएमसीजी प्रोडक्ट बनाते हैं। लेकिन ये क्या करेंगे, जो बेसिकली कोई भी कंपनी है, मान लो एक कंपनी एबीसीडी और वो दूसरी एक्सवाईजेड कंपनी के साथ क्या हो जाएगी, बेसिकली मिल जाएगी, और अपने प्रोडक्ट मतलब दोनों कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो सिंगल चैनल से डिस्ट्रीब्यूट होगा। नॉन कॉम्पिटिटिव का मतलब यही है कि जो दोनों कंपनी है वो कोई भी कंपटीशन नहीं है, दोनों कंपनी में, दोनों कंपनी अलग अलग प्रोडक्ट में डील कर रही है, कोई कॉम्पिटिटर नहीं है ये, मतलब ये दोनों कॉम्पिटिटर कंपनी नहीं होंगी। ठीक है, ऑब्वियसली कोई कॉम्पिटिटिव होंगी कंपनी, तो ऐसे केस में बहुत रेयर चांसेस हैं कि कोई भी साथ में मर्ज होकर प्रोडक्ट सेल करेगा, है ना। तो नॉन कॉम्पिटिटिव जो कंपनीज है वो क्या करती है, एक दूसरे से मिल जाती हैं और करके सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, नॉट फॉर द प्रोडक्शन एंड ऑल, ओनली फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस, एक दूसरे के साथ वो मिल जाती हैं, एंड फिर वो एक ही सिंगल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को क्या करती हैं, वो करती हैं फॉर सेलिंग द प्रोडक्ट। लाइक एक ही चैनल को यूज करके प्रोडक्ट को सेल करती हैं वो। ठीक है, तो यहाँ इसको हम कहते हैं सिंडिकेट डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे पीएनजी जो है, ठीक है, has made use of the distribution channel of Marico for selling their product। ठीक है, तो यहाँ पर जो दो कंपनीज हैं वो आपस में मर्ज होती हैं सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और प्रोडक्ट को सेल करती हैं। ठीक है, नॉन कॉम्पिटिटिव गुड्स होते हैं ज्यादातर, वो साथ में मिल जाती है। सिंडिकेट डिस्ट्रीब्यूशन सबको क्लियर हो गया? सिंडिकेट क्लियर हो गया? अब एक चीज इसमें और भी आएगा, दैट इज प्रोजेक्ट शक्ति भी इसी में इंक्लूडेड होगा, इसीलिए मैंने आज प्रोजेक्ट शक्ति भी आपसे क्वेश्चन में पूछा था। ठीक है, खुशियों की टोली तो हमने लास्ट क्लास में किया था, तो प्रोजेक्ट शक्ति इज ऑल्सो द वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट, दैट वहां पर बेसिकली कुछ लोगों को हायर करना और वहीं के लोगों से वहीं लोकल एरियाज में प्रोडक्ट को सेल करवाना बाय यूजिंग द मेथड ऑफ पर्सनल सेलिंग। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट शक्ति इज ऑल्सो द वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट विच इज यूज्ड बाय द हिंदुस्तान यूनिलीवर। ठीक है, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव दो था, एक तो सोशल भी, जैसे इनकम लेवल वगैरह इंक्रीज हुआ, एम्पावरमेंट मिला, और साथ साथ उनके प्रोडक्ट्स भी हर एक कंज्यूमर तक पहुंच रहे थे, मतलब अवेलेबिलिटी भी पॉसिबल हो पाया। तो प्रोजेक्ट शक्ति इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन या फिर बोल सकते प्लेस डिसीजन में ये भी आपका एक बेसिकली प्रोजेक्ट जो है प्रोजेक्ट शक्ति आएगा। नेक्स्ट जो है आपका हार्ट। हार्ट के थ्रू भी हम प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और हार्ट क्या होता है, जैसे मेलाज और हार्ट वगैरह में, जैसे कंपनी क्या करती है, अपने प्रोडक्ट को प्रॉपर्ली प्रमोट और सेल नहीं कर पाती, बिकॉज वहां के बिलीफ, वहां के वैल्यूज कई बार जो है कंफ्लिक्ट वाले सिचुएशंस हो जाते हैं। बट हार्ट और मेलाज जो होता है एक इंटरेस्टिंग उनके लिए इवेंट होता है,
तो जिसमें ज्यादातर जो रूरल एरियाज के लोग हैं वो बेसिकली पार्टिसिपेट करते हैं। तो उनके लिए एक बहुत ही बेस्ट वे है बेसिकली प्रोडक्ट को सेल करना और प्रमोट करना हार्ट्स के थ्रू। तो द हार्ट्स इज ऑल्सो द बेसिकली इसमें ही आएगा, आपके प्लेस मिक्स में आएगा हार्ट। ये सारे लिख लिए ना आप लोगों ने, सैटेलाइट, हब्स एंड स्पोक, ठीक है, सिंडिकेट, हार्ट, यस। उत्सव, मैम सैटेलाइट डिस्ट्रीब्यूशन फिर से बता दीजिएगा। सैटेलाइट डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसमें एक बार फिर से समझ लीजिए, इस सिस्टम में जो कंपनी क्या करती है, वो कुछ स्टॉकिस्ट मतलब कुछ टाउन को जैसे सिलेक्ट कर लेती है, इंपॉर्टेंट टाउन को। टाउन पता है क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट से थोड़ा बड़ा और सिटी से छोटा, ठीक है। तो टाउन्स को अपॉइंट कर लेती है, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट टाउन्स को बेसिकली वो कवर करती है। उस टाउन में स्टॉकिस्ट को अपॉइंट करती है। स्टॉकिस्ट क्या करता है ना, जैसे कंपनी से प्रोडक्ट मंगवा करके अपने पास स्टॉक कर लेता है। अब वो स्टॉकिस्ट का काम है कि वहां पर वो जितने भी एरिया पर्टिकुलर जिस टाउन के नियर बाय जो भी विलेजेस है ना, डिस्ट्रिक्ट और विलेजेस है, उसको कवर करना। तो ये होता है सैटेलाइट, ठीक है, सैटेलाइट डिस्ट्रीब्यूशन। तो सैटेलाइट डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, जैसे एक यहाँ पर हमने एक टाउन को बेसिकली प्रोडक्ट प्रोवाइड कर दिया, एक टाउन में के स्टॉकिस्ट को, वो स्टॉकिस्ट जो है वो इधर 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 जो भी आपके जितने भी मेजर विलेजेस, डिस्ट्रिक्ट वगैरह जो भी है उस एरिया के, उन तक प्रोडक्ट पहुंचाने का काम करता है। समझ में आ गया उत्सव? यस मैम। ओके, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट जो आपका है प्रोजेक्ट शक्ति लिख लिया, सिंडिकेट डिस्ट्रीब्यूशन लिख लिया आप लोगों ने, हार्ट्स लिख लिया, मेलाज भी वही चीज हुआ, मेलाज वगैरह जो आप कुंभ मेला जैसे रिलीजियस मेला है, ठीक है। फिर कुछ कैटल कॉमोडिटी सोन मेल लगता है हमारे बिहार में। तो दीज ऑल आर द ऑल्सो द मेजर मेलाज है, जहाँ पर बेसिकली कुछ वीकली मेलाज होते हैं, कुछ ऐसे लगते रहते हैं गांव में, या फिर कुछ ओकेजन के हिसाब से मेलाज लगते हैं, जैसे दशहरे वगैरह में लगते हैं ना। तो ये सारे मेलाज जो है वो भी कंपनी के लिए एक बेटर ऑप्शन है, जहाँ पर वो स्टॉल वगैरह लगा के प्रोडक्ट्स और मतलब प्रोडक्ट्स वगैरह मतलब वहां पर बैनर वैनर लगा के प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। हार्ट पे भी कर सकते हैं, ठीक है, हार्ट एंड मेलाज में भी डिस्ट्रीब्यूशन का काम, ठीक है। और कुछ मोबाइल ट्रेडर्स होते हैं। मोबाइल ट्रेडर्स का मतलब क्या होता है, जो बेसिकली वही होते हैं आपके मोबाइल ट्रेडर्स। आपके कौन होंगे, होते हैं जो बेसिकली अलग अलग जगह जगह पे जाके प्रोडक्ट को सेल करते हैं, जो एक जगह पे टिकते नहीं है, बेसिकली हॉकर्स, पेडलर्स, उन्हीं को कहेंगे हम मोबाइल ट्रेडर्स। जो फेरी वाला जिसको नहीं कहते, फेरी वाला आया, ठीक है। तो फेरी वाला जो है वो भी एक तरीका है वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन का। खैर ये सब अनऑर्गेनाइज्ड है। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक करेंगे नेक्स्ट क्लास में वो होगा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। और आज हमने पढ़ा कि व्हाट आर द वेरियस प्रॉब्लम्स इन द रूरल एरियाज, ठीक है, एंड व्हाट आर द वेज, क्या तरीके होंगे बेसिकली किस चीज के, प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रूरल एरियाज में। तो इसको कौन बताएगा मुझे, नाम कौन बताएगा, रूरल एरियाज में कौन कौन तरीके हैं प्रोडक्ट को सेल करने के लिए? हु इज गोइंग टू टेल मी अबाउट इट? Raise your hand. Raise your hand. Who is going to tell me about it? Yes, Priya. Ma'am, first is satellite distributor. Second one is hub and spoke method. Third one is syndicate distributor. Fourth one is project Shakti. Fifth Mela, heart. और एक और चीज मैंने बताया था, मोबाइल ट्रेडर्स लाइक फेरी वाला वगैरह, वो भी एक तरीका होता है प्रोडक्ट को सेल करने, ठीक है। तो अब एक चीज और भी था कि व्हाट आर द वेरियस प्रॉब्लम इन रूरल एरियाज, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है रूरल एरियाज में? व्हाट आर द वेरियस प्रॉब्लम्स इन रूरल एरियाज? हु इज गोइंग टू टेल मी अबाउट इट? Ma'am, non-availability of dealers in rural market. Second is poor viability of retail outlet. Third one is inadequate banking facility. Fourth one is transportation and communication system. And fifth lack one of proper transportation and communication system. Yes. Next one. And fifth one is social connection. Very good. Anyone have any doubt whatever we discussed today? किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है? ठीक है, तो see you all on next class, ठीक है, Wednesday.